Welcome students. Today in this video we will discuss the third chapter of class 11th accountancy, accounting principle. In the first chapter we have already discussed that accounting is a language of the business which provide information about the business. कि accounts क्या होते हैं, एक language होती हैं जो entire business के बारे में information provide करते हैं to the users विच आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल्स यूजर की. बहुत सारे यूजर्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल्स हैं चाहे वो यूजर्स हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ओनर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट. So these are the users of the accounting information which use accounting information for their needs. So these accounting information must be based on some set of rules. ये जो accounting informations हैं ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स पर बेस्ड होनी चाहिए. These rules are called the accounting principles. So what are the accounting principles? Accounting principles are the uniform set of rules which provide guidance for preparing the accounts. यानी accounting principles क्या होते हैं, वो set of rules होते हैं, वो standard set of rules होते हैं जो accounts को prepare करने के लिए एक base देते हैं, एक rules and regulations देते हैं. और इन accounting principles पर जो account prepare होते हैं, जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो रिलायबल होते हैं, वो ट्रू होते हैं और वो यूजर्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको यूज कर सकते हैं. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वी कैन से दैट दीज आर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हेल्प्स टू मेंटेन द अकाउंट्स. सो दे आर द फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. First feature is accounting principles are the uniform set of rules. We have already discussed that accounting principles are the uniform set of rules and regulations which helps to maintain the accounts. यानी accounting principles क्या होते हैं, वो set of rules होते हैं जो accounts में uniformity लाते हैं, accounting informations को easy बनाते हैं, उनको समझना आसान हो जाता है, उनको compare करना आसान हो जाता है, क्योंकि सभी accountant उन्हीं accounting rules और regulations के base पर अपने accounts को prepare करते हैं. इसीलिए उनका एक दूसरे के साथ compare करना, past के साथ compare करना, accounting information को present करना बहुत easy हो जाता है. So we can say that accounting principles gives uniformity in the accounts. वो uniformity देते हैं accounts में. Second is man made. This accounting principle, the second feature of accounting principle are that these are man made. ये laboratory में test करके नहीं बनाए गए, ये experience से बनाए गए हैं. So these are the man made principles which only guide the accountant टू प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन. यानी ये गाइड का काम करते हैं, गाइडेंस का काम करते हैं, और इनके बेस पर अकाउंटेंट जो अकाउंट्स बनाते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, उनमें कंपेरेबिलिटी होती है, क्योंकि सभी उन्हीं स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस पर उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं. द थर्ड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. सो द थर्ड फीचर ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दैट दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड. ये इतने रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं. हम इनमें नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन द डायनामिक एनवायरनमेंट जहाँ पे हर रोज बहुत चेंज आते हैं, तो हमें बिजनेस में भी चेंज करने पड़ते हैं. सो हम चेंजेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी चेंज कर सकते हैं. सो दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, नॉट द रिजिड. Number fourth is these are the generally accepted. These accounting principles are the generally accepted, or we can say that GAP, generally accepted accounting principles, because these principles are generally accepted by all the accountant in the business world. क्योंकि ये जो accounting principle है इनको generally accepted किया गया है, क्योंकि इन accounting principles के बेस पर जो हम accounts prepare करते हैं वो बहुत यूजेबल होते हैं. वो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स जो उनको अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं वो उनके लिए बहुत यूजेबल होते हैं, क्योंकि इन पर जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है वो ट्रू एंड फेयर होती है. सो अगर हम अकाउंट्स में कहते हैं कि दिस प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, तो उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए. द फर्स्ट वन इज रेलेवेंस. द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी रेलेवेंट. रेलेवेंट होनी चाहिए ताकि हम यूजर्स को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का यूजर्स के लिए कोई भी यूज नहीं होता है. द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी. एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम ऑब्जेक्टिविटी, इक्वालिटी कह सकते हैं इफ इट विल बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस. अगर वो पर्सनल बायसनेस से फ्री होगा देन इट विल बी ऑब्जेक्टिविटी, यानी उसमें पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए. नंबर थर्ड इज फेसिबिलिटी. एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फेसिबिलिटी होगी उसमें क्वालिटी अगर हम उसको बिना किसी कॉस्ट के हर सिचुएशंस में लागू कर सकते हैं, हर सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. सो दीज वर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स which helps an accountant to make the accounts. Hope you understand the concepts. Thank you.